Welcome students. Welcome in my class. Dear students, in this video we are going to talk about NCERT Class 7 Subject Geography Chapter 2 Inside Our Earth. Our topic is rocks and minerals. Dear students, in last video we have learned about the crust. Now in this video we will learn more about the crust. Dear students, the earth crust is made up of various types of rocks. Now here one question rise, and the question is, what is rocks? Dear students, any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. It means ऐसे मिनरल मैटर्स जो हमारी अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उनको हम रॉक्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, rocks can be of different color, size and texture. Here in this image you can see so many rocks, and these rocks are different from one another in colors, in shapes, in textures also. Dear students, in our chapter we will learn about the types of rocks, and here there are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. In this table you can see some example of these three types of rocks. Now we will learn in detail about these three types of rocks. First one is igneous. Dear students, igneous rocks also called primary rocks. Dear students, when the molten magma cools, it becomes solid, and the rocks which made up of this solid magma or cooled magma known as igneous rocks. Here in this image you can see how molten magma comes out, and when magma came out, this magma is known as lava. So when this lava cool down and solidified, so इससे जो rocks बनेंगी वो कहलाएंगी हमारी igneous rocks और primary rocks. Dear students, there are two types of igneous rocks. Number one, extrusive rock, and number two, intrusive rock. When lava came out and formed on the surface, then it is known as extrusive rocks, whereas when magma cooled down inside or underground, then it is known as intrusive rocks. Here you can see that this is the surface of the earth and this is molten magma, and when this molten magma came out, then it is known as lava. जब तक ये अंदर है तो हम इसे मैग्मा कहते हैं, जब ये बाहर आ जाता है तो हम इसे लावा कहते हैं. देखिए कैसे यहाँ से वोल्केनो इरप्ट हुआ और ये बाहर आ गया, और when it came outside then it flow on the surface and cool down, और इससे जो रॉक्स बनती हैं उन रॉक्स को फिर हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स. whereas when this molten magma कूल इनसाइड, ये देखिए यहाँ पे इनसाइड यहीं पर कूल हो गया और यहीं पे सॉलिडिफाइड हो गया. सो इस तरीके की जो रॉक्स मिलती हैं जो हमें अंडरग्राउंड मिलती हैं, ऐसी रॉक्स को हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं. सो यहाँ दो बातें क्लियर हो रही हैं दैट कि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो ऑन द सरफेस भी मिलती हैं और इनसाइड द अर्थ भी मिलती हैं. जो इग्नियस रॉक्स ऑन सरफेस मिलती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, एंड वेयर एज जो अंडरग्राउंड मिलती हैं उन्हें हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं. In this slide you can see some example of intrusive rocks and extrusive igneous rocks, and you can also see the color and the texture and the shapes all are different. And now our sedimentary rocks. Dear learners, with the passes of time, rocks can be cracked or
broken down into pieces, and these small fragments further broken into small particles, and these small particles known as sediments. And with the water and with air, these sediments transported and deposited on different places, and these sediments are compressed and hardened to form layers of rock. Dear students, in this image you can see here how this rocks broken down into sediments, and these sediments can be deposited or transported from here with air or water and deposited on some another place. And in this image you can see here the layers of sediments, कि कैसे हवा ने या पानी ने बार बार इन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है और पूरी की पूरी ये रॉक्स बन गई हैं. ठीक है. सो आपको यहाँ पर सेडिमेंट रॉक्स के बारे में एक और बात पता चल गई कि दीज रॉक्स कैन बी फाउंड इन लेयर्स. दीज आर द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स जो कि बार बार पानी या फिर एयर की वजह से डिपॉजिटेड हुई है. Here in this image you can see some examples of sediments: shale, sandstone, limestone, etc. Here one more important thing about the sedimentary rocks is that these sedimentary rocks may also contain fossils of plants and animals and other microorganisms. That means in layers के in between हमें रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा मिल सकते हैं, बिकॉज ये लेयर्स जो हैं वो एक साथ नहीं बनी हैं जैसे कि हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं. लावा आया, बाहर आया और सॉलिडिफाइड हो गया और रॉक्स बन गई है. नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हैं बहुत सारे टाइम प्रोसेस के साथ बनी है. पहले वन लेयर लगी, फिर बहुत टाइम के बाद कोई दूसरी लेयर. सो इन बिटवीन इन लेयर्स के बीच में जो भी रहता है तो वो वहीं पे उसके रिमेन्स जो है हमें मिल सकते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें फॉसिल्स मिलते हैं. एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, igneous rocks and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. When these igneous and sedimentary rocks come under great heat and pressure, then it change into metamorphic rocks. जब हम igneous rocks पे और sedimentary rocks पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जनरेट कर देंगे तो उसका कलर जो है, टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये जो बदला हुआ रूप है यही मेटामॉर्फिक कहलाता है. हेयर इन दिस इमेज यू कैन सी द लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल. जब लाइमस्टोन को बहुत ज़्यादा हीट या और प्रेशर में डाला गया तो वो चेंज होके कैसे बन गया, मार्बल. हेयर इन दिस इमेज यू कैन सी when मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज. और ये मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, जब हीट और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. अगर आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है तो किसी भी डार्क क्लॉथ को अगर आप धूप में डालेंगे और उसे कई दिन तक कॉन्टिन्यूसली उसको धूप में डाल के रखिए, देखिएगा उसके कलर में चेंज हो जाता है. सो वो कैसे हुआ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसने सारा दिन धूप बर्दाश्त की है, तो उसका टेक्सचर जो है वो बदल जाएगा, उसका कलर जो है वो बदल जाएगा. यही बात हमारे साथ रॉक्स के साथ होती है. जब उन्हें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में डाला जाता है तो वो अपना रूप बदल देते हैं. जैसे कोयला बिल्कुल ब्लैक होता है और जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर डाला जाता है तो वो डायमंड बन जाता है. डायमंड आपको पता है कितना ब्राइट होता है, शाइनी होता है. So this is metamorphism rocks. When sedimentary rocks और igneous rocks को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में या प्रेशर में, दबाव में डाला जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, उनका रूप जो है चेंज हो जाएगा, और ये बदला हुआ जो रूप हो जाएगा ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है. Dear students, rocks are very useful to us because they help us in making road, houses, buildings. Even we use stone in many games. For example, 7-steppo, hopscotch, 5-stone, etc. Here you can see
two most beautiful buildings of our India. Red Fort, which is made up of red sandstone, and the Taj Mahal, which is made up of white marble. सो रॉक्स के साथ हम बहुत सुंदर बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं, तो रॉक्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. सो नाउ अब हम समझेंगे कि रॉक्स जो चेंज हुए हैं, जो मैंने अभी अभी कहा आपको कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक्स में. सो ये चेंजेस कैसे टेक प्लेस होते हैं, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस चेंजेस विद द हेल्प ऑफ रॉक साइकिल. So here in this image you can see, first of all, the magma came out on the surface and make igneous rocks. Here you can see, सबसे पहले क्या बना, igneous rocks. हम इनको igneous rocks को primary rocks भी कहते हैं. When this igneous rocks broken down into pieces, fragments, so ये बन गए sediments. और when with the help of air or water these sediments deposited on some another place, और यहाँ पर layers by layers बनकर ये क्या बन गई, पूरी हमारी sedimentary rocks बन गई. किससे बनी, इन sediment से. जब हवा इनको उठा के ला देती और कहीं पे डिपॉजिट कर देती तो इस तरीके से ये हमारे sedimentary rocks बन जाते हैं. और when sedimentary rocks come under great heat and pressure then it change their color, और ये विद द पासेस ऑफ टाइम ये भी टूटते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा धूप और रेन सब बर्दाश्त करते हैं, तो इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. और ये पतला हुआ जो चेंजेस जो होता है, ये जो रॉक्स बन जाती हैं अब मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं. और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं, और ये जो हीट और प्रेशर जो है ये कंटिन्यू है. सो दीज यहाँ पर जो ये मेटामॉर्फिक रॉक हैं ये और भी ज़्यादा वीक हो गई हैं. तो अगर इन पे भी वो जो ग्रेट हीट और प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये मेल्ट हो जाएंगी. और मेल्ट होके फिर ये वापस क्या बन जाएंगी, मैग्मा, मोल्टन मैग्मा. सो दिस इज द सर्कल. अब यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है एक तो इस प्रोसेस के थ्रू बनना, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट जो है इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी हमारा मेटामॉर्फिक बन सकता है. और मेटामॉर्फिक भी जो है वो भी सेडिमेंट्स में टूट सकता है और यहां पर आ सकता है. सो दिस इज द रॉक साइकिल. यहाँ पे हम 2 पिक्चर्स से रॉक साइकिल को फिर से समझेंगे, देखेंगे. दिस इज रियली वेरी सिंपल कि कैसे यहाँ पे वोल्केनो जो है उससे इग्नियस रॉक्स बनी. इग्नियस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स में ब्रोकन हुई और उनसे फिर एयर और वाटर की हेल्प से यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई. और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो चेंज हुई और मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई. और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है अगर उनको हम कंटिन्यू हीट और प्रेशर में डाल के रखेंगे तो वो वापस मोल्ट हो जाएंगी और मोल्टन मैग्मा बन जाएंगी. ये तो हुआ बहुत ही ज़्यादा सिंपल. अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हेयर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इसको. यहाँ पर मैग्मा है. सो सबसे पहले तो जो हमारी मैग्मा से क्या बनेंगी, हमारी इग्नियस रॉक्स बनेंगी. इग्नियस रॉक से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं. सेडिमेंट्री रॉक से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही हैं. बट यहाँ पर आप देखिए विद वेदरिंग और इरोजन, हमने 6th क्लास में वेदरिंग और इरोजन समझा था कि जब हम कंटिन्यू धूप में रहते हैं या फिर बारिश होती है या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है तो उससे हमारा क्या हो जाता है, सोयल इरोज हो जाती है, रॉक्स जो टूट गए हैं वो इरोज हो जाते हैं. तो ये वेदरिंग और इरोजन की वजह से भी क्या होता है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्स में टूट सकते हैं. और इग्नियस रॉक्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकती है और सेडिमेंट्री भी जो है वो भी मेटामॉर्फिक बन सकती है. तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 2 इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश की है. दिस इज वेरी सिंपल बट द एक्चुअल इज दिस कि इग्नियस देन सेडिमेंट्री देन मेटामॉर्फिक, बट मेटामॉर्फिक ऑल्सो fragmented into sediments and igneous also directly change into metamorphic. So this is our rock cycle, and with this rock cycle our chapter is complete. Now the revision time. So today we learn in this video about the rocks, types of rocks. In types, first one is igneous,
and igneous also divided into two: extrusive rocks, intrusive rocks. And these are some examples of intrusive and extrusive: sedimentary rocks, metamorphic rocks, कैसे वो चेंज हो गई है उनका कलर और टेक्सचर, and rock cycle. Now, can you tell me what is mineral? We already discussed in our keyword what is mineral. Dear students, our rocks are made up of different minerals, and minerals are naturally occurring substance. वो naturally occur होते हैं, and they have some certain physical properties and their definite chemical composition. So this is the definition of the mineral, and minerals are really very, very important to humankind, because our food also contain minerals. And if we talk in the point of economy, so we used as fuel, for example, coal, natural gas, petroleum, and industries also run with the help of the minerals. They need iron, aluminium, gold, uranium, etc. हमारे medicines और fertilizers में भी minerals होते हैं. So minerals are really very important for us. So this is our chapter. Now exercise time. This is our exercise, and the first question is, what are the three layers of the earth? So three layers हैं हमारी: the crust, the mantle, the core. Second question is, what is rock? जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया. A rock refer to an natural mass of mineral matter that makes up the earth crust. जो हमारी अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, ऐसा मिनरल मैटर, उसको हम रॉक कहते हैं. Name 3 types of rocks. Number 1, igneous rocks. Number 2, sedimentary rocks. Number 3, metamorphic rocks. Next question is, how are extrusive and intrusive rocks formed? Extrusive rocks are formed when the molten magma present inside our earth comes out on the earth's surface and cool down and become solid. So इससे बनेगी हमारी extrusive rocks. And intrusive rocks, when molten magma cools down and solidify deep within the earth crust, then they made intrusive rocks. What do you mean by rock cycle? The transformation of one type of rock into another under certain condition and in a cyclic manner, then it is referred to as the rock cycle. For example, igneous rocks formed as a result of the solidification of molten magma. जैसे molten magma के solidify होने से igneous rocks बनती हैं. It may break down into small particles which may then be transported and deposited to form sedimentary rocks. And sedimentary and igneous rocks transform into metamorphic rock when subjected to heat and pressure. जब हीट और प्रेशर हम सेडिमेंट्री और इग्नियस पे डालते हैं तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं. These metamorphic rocks may themselves get broken down to form sedimentary rocks. और मेटामॉर्फिक जो है वो ब्रोकन भी हो सकती हैं, जिससे कि सेडिमेंट्स बन जाएंगे और फिर वही सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे. और दे मे मेल्ट, और वो मेल्ट भी हो सकती हैं अगर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट डाला जाए. अगर ऐसा हो गया तो फिर वो मेल्ट हो जाएंगे और फिर वो इग्नियस रॉक्स बन जाएंगी. सो दिस इज आवर रॉक साइकिल. एंड इन दिस क्वेश्चन, इन दिस आंसर यू हैव टू ड्रॉ दिस रॉक साइकिल. अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो मैंने स्लाइड में पहले भी ये रॉक साइकिल दिखाया है और आपकी बुक में भी रॉक साइकिल है. सो आपको इस आंसर में ये रॉक साइकिल जो है वो ड्रॉ करना है. Now the next question is, what are the uses of rocks? Rocks can be used for building roads, houses and buildings, for making jewelry. हम रिंग पहनते हैं ना अलग अलग डिफरेंट कलर के स्टोन्स की. For cutting and drilling purpose. The remains of plants and animal present in rocks help in scientific researches. हमारे रिसर्चर्स जो होते हैं वो जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में जो फॉसिल्स मिलते हैं उनके ऊपर रिसर्च करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं.
The different minerals that makes up different rocks are used as fuels, medicine, fertilizers, and in various industries. So these are the uses of our rocks. Next question is, what are metamorphic rocks? Metamorphic rocks are the rocks that get formed under great heat and pressure. Igneous and sedimentary rocks, when subjected to heat and pressure, get transformed into metamorphic rocks. ये हमने अपने डिस्कशन में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा. मोल्टन मैग्मा से कौन सी बनी है? सबसे पहले हमारी प्राइमरी रॉक्स. तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं? इग्नियस. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इनर मोस्ट लेयर कोर. कोर सबसे हमारे अंदर थी, इनर कोर एंड आउटर कोर. सो कोर इज आर आंसर. आंसर बी. नेक्स्ट इज गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ. किसके एग्जाम्पल है? मिनरल्स. रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स. तो फॉसिल्स हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, लेयर्स में होते हैं. द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, क्योंकि वो 35 किलोमीटर विड्थ है उसकी बस डेप्थ. मैच द फॉलोइंग. कोर. कोर इज आर इनर मोस्ट लेयर. सो फर्स्ट में आएगा हमारा ई. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. तो सेकेंड नंबर पे डी. रॉक्स. रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में हम, और रोड्स बनाने में रॉक्स का यूज करते हैं. देन बी. क्ले. क्ले चेंज्ड इनटू स्लेट. सियाल मेड ऑफ silicon and alumina. So answer is, this is the sequence E, D, B, F, C. Now give reasons. We cannot go to the center of the earth. हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते. Why? The center of the earth lying about 6,000 kilometer from the ocean floor. अगर हम ओशन फ्लोर से, क्योंकि वो हमारा डीपेस्ट पॉइंट है, अगर हम क्रस्ट से देखें तो अगर हम वहाँ से डिगिंग करें तो हमें 6,000 किलोमीटर इनसाइड जाना है अगर हमें अर्थ के सेंटर पे पहुँचना है. देन इज़ कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और प्रेशर भी. हर लेयर का अपने आप में प्रेशर है, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है. सो देर इज़ ओनली मोल्टन मैग्मा एट अर्थ सेंटर. और अर्थ के सेंटर में सिर्फ मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है. ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट फ्रॉम दिस रीजन. और जब ऑक्सीजन नहीं है तो ह्यूमन बींग का वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है. सो सच कंडीशन डू नॉट परमिट द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दस वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. इसलिए हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते. सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से बनती हैं. एक्सप्लेन करो. व्हेन बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम सेडिमेंट्स भी कहते हैं. देन दीज फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय फैक्टर्स लाइक वाटर एंड विंड. जब हमने सेडिमेंट्री रॉक्स की थी देन हमने वहाँ पर देखा था कि कैसे उस इमेज में सेडिमेंट्स जो हैं वो वाटर और विंड की वजह से डिपॉजिट हो गए थे किसी और प्लेस पे. सो द लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस, दबते जाते हैं. हर एक वो जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं जब उनकी लेयर आ जाती है तो उसके ऊपर जब दूसरी लेयर आ जाती है तो वो कंप्रेस हो जाता है. एंड हार्डन ओवर द ईयर्स टू फॉर्म लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ रॉक्स. सो इस तरीके से ये सालों साल ये प्रोसेस चलता रहता है और दीज रॉक्स आर नॉन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. ऐसी रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल. आंसर, limestone is an example of sedimentary rock, and when it subjected to condition of extreme heat and pressure, लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, बट जब उसको आप बहुत ज़्यादा हीट में और प्रेशर में डाल दोगे, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्बल. तो ये मार्बल में चेंज हो जाता है.
विच इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक। लेट मी शो यू द इमेज, आपको रिवाइज हो जाएगा। हेयर लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। सो यहाँ पर गिव रीजंस भी हमारे कंप्लीट हुए। एंड दिस इज द लास्ट फॉर फन, 5th पॉइंट। What are the minerals most commonly used in the following objects? जो आपके सामने स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, ये कौन से मिनरल से बने हैं, ये हमें बताना है। फर्स्ट वन इज कराई, विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। सेकेंड वन इज ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी गिवन है। सो वहाँ पे हमारे कौन से मिनरल यूज हुए हैं? गोल्ड, सिल्वर। इन लैम्प, brass, silver, gold. Hammer made up of iron, steel, lead and brass. Bell made up of brass, silver, gold. And in last, pan, जिसको हम तवा बोलते हैं, that is made up of iron, steel and aluminium. And this activity is for you. You can try at your home. आपको सामने जो ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे अपने घर पर, आप उन्हें कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की वो किस मिनरल से बने हैं, ठीक है। एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी as soon as possible. I have given you the schedule, but you can send it to me as quick as you can. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.